السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل احترام صدر اجلاس، کئی جگہ سے آئے ہوئے ذمہ داران مساجد اور خاص طور سے اس گوری بنور کی مسجد رحمانیہ کے ذمہ دار، جماعت اور جمعیت کے ذمہ دار، آج کے اس دن اصل میں بچوں کا پروگرام، پھر اس کے بعد نفلی طور پر ہمارا پروگرام سننے کے لیے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، عنوان آپ تک پہنچ چکا ہے، بتا دیا جا چکا ہے. عنوان ہے نوجوانوں میں دین بیزاری. میں نے اسی کی مناسبت سے قرآن مجید کی سورہ الروم کی ایک آیت پڑھی ہے. ترجمہ آیت کریمہ کا اردو زبان میں یہ ہے: اللہ الذی خلقکم من ضعف. اللہ وہی ہے جس نے تمہیں کمزور بنایا ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوة. پھر اس کمزوری کے بعد اللہ تمہیں طاقتور بنائے گا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ طاقت کے بعد تمہیں بوڑھا بنائے گا، دوبارہ تمہیں کمزور بنائے گا. یخلق ما یشاء، جیسے چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. وہو العلیم القدیر، وہ علم رکھنے والا ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے. معزز سامعین، زندگی میں کئی مراحل ہیں. آدمی پیدا ہوتا ہے 7 سال تک، اہل علم کہتے ہیں 1 سال سے 7 سال تک ایک مرحلہ ہے. 7 سال سے 15 سال تک ایک مرحلہ ہے. 15 سے 40 کا ایک مرحلہ ہے. 40 سے 50 کا ایک مرحلہ ہے. 50 سے مرتے دم تک ایک مرحلہ ہے. 5 مرحلوں میں علماء کرام، دانشوران انسان کی زندگی کو بانٹتے ہیں. یہ سارے مرحلوں میں سب سے اہم، سب سے امپورٹنٹ، سب سے لمبا، سب سے طاقتور اگر کوئی مرحلہ ہے اللہ کے پاس، وہ مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہے. دنیا سر نیچے پیر اوپر کر لے، اللہ کی اس ترتیب کو بدل نہیں سکتی. اگر ہے طاقت تو دنیا بدل کے دکھا دے. پیدا ہوتا ہے کمزور، اللہ نے کہا. آپ جانتے ہیں ایک انسان کو پلٹنے میں، کروٹ لینے میں ایک بچے کو 3 مہینے لگ جاتے ہیں. نہ اپنے سے کھا سکتا ہے، نہ اپنے سے پانی پی سکتا ہے، نہ اپنے سے بیت الخلا جا سکتا ہے. ساری دنیا کی مخلوق میں علماء کا یہ ماننا ہے انسان سب سے کمزور ہے. جانور اس کے مقابلے میں بڑا مضبوط ہوتا ہے. کئی پرندے ایسے ہوتے ہیں جو انڈے سے باہر نکل کر چلنے لگتے ہیں، سبحان اللہ. اور اس کے بعد جوانی، اور جوانی کو اللہ نے کہا یہ طاقتور مرحلہ ہے. اللہ اگر کسی چیز کو طاقتور کہہ رہا ہے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ اس ضعف کے بعد اللہ نے تمہیں طاقت عطا فرمائی ہے. مگر یاد رکھو میں آگے بڑھ رہا ہوں، قرآن کی اس کی بات کیا ہے. مگر یہ طاقت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. جی ہاں، اللہ ایک آئے گا زمانہ، یہی فطرت ہے، یہی نیچر ہے. یہ جوانی کے بعد بڑھاپا آنا ضروری ہے. آپ جتنا چاہے پینٹ مار لو، آپ جتنا چاہے اپنے آپ کو جو جم میں چاہنا چاہے جم کر لو، آپ جتنا اسمارٹ بننا چاہے اسمارٹ بن جاؤ. اوپر سے تو آپ نظر آؤ گے بہت ہٹے کٹے، اندر سے عمر جو ہے وہ نظر آ کے رہے گی. اب 60 کے ہیں، اب 70 کے ہیں، نظر آ کے رہے گا. ساری دنیا مل کر بھی، ساری دولت لگا کر بھی واپس 70 سے آپ 40 کے نہیں ہو پاؤ گے. یہ ترتیب ایسے ہی چلے گی. ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگوں کو
मालदार तरीन लोगों को 80 साल के बाद बेटे को भूल जाते हैं। बड़े बड़े डॉक्टरों को मैंने देखा है, बड़े अच्छे डॉक्टरों को मैंने देखा है, सर्जनों को मैंने देखा है। एक उम्र होने के बाद आप कौन हैं, आप कौन हैं सवाल होता है। भाई को पूछते हैं आप कौन हैं। आप जानते होंगे डिमेंशिया एक नाम की बीमारी है, आदमी अपने आप को ही भूल जाता है। ये अल्लाह ने तरतीब बनाई है और उस तरतीब के अंदर जवानी की बड़ी अहमियत है। जगह जहां भी जाता हूं यूट्यूब में 5-6 तकरीरें मेरी जवानी की रहेंगी, मौजू जवानी पर। मैं गुजारिश करता हूं जिम्मेदारों से, खवातीन इस्लाम और जवानी छोड़कर दूसरे मौजू दिए मुझे, मेरी गुजारिश है। और हां, शुक्रिया शेख, 22 साल से मुझे लोग जवान बोल रहे हैं जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। जब से 2002 से मैं फारिग होकर निकला, जब से तकरीरें कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त से लोग जवान ही कह रहे हैं। अल्लाह ताला हमें हमेशा जवानों जैसी ताकत अल्लाह अता फरमाए, और अल्लाह उसके दीन की खिदमत के लिए रब ने चुन लिया है, अल्लाह उसी दीन पर अल्लाह हमें मौत भी अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है। अल्लाह के रसूल ने एक जुमला कहा, इसलिए कि मेरे बाद भी दो माशाअल्लाह अहले इल्म हजरात दो मौजूद हैं, मेरे सीनियर, बहुत सीनियर माशाअल्लाह, वो भी बोलना है, फिर ये जलसा खत्म करना है। हालात का तकाजा ये है। आते वक्त एक नौजवान ने कहा आपको आज टाइम की कोई पाबंदी नहीं है शेख। जी हां, इंशाअल्लाह आप अकेले मिलिए, दोनों मिलकर बयान करेंगे इंशाअल्लाह। आज मैं अपने लिए पाबंदी रखता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जुमला है, कोई इंसान, मुसलमान नहीं, आदम का बेटा, यह जुमला है नबी का, आदम का बेटा रब के दरबार से हट नहीं सकता। अब्दुल्लाह इब्न मसूद इसके रावी हैं, सिलसिलतुल अहादीस सहीहा में हदीस मौजूद है, सही हदीस है। आदम का बेटा रब के दरबार से हट नहीं सकता, 5 सवालों का जवाब उसे देना है। आपने 50 बार यह हदीस सुनी। और पहला सवाल क्या है? अन उम्रिही फीमा अबला व अन शबाबिही फीमा अफना। उमर कहां गुजारा, उमर कहां गुजारी, पैदा किस लिए किए गए थे, सारी उम्र कहां तुमने बिताई, और उम्र में जवानी मौजूद है। इसके बावजूद अल्लाह के नबी का जुमला यह है, जवानी तूने कहां गुजारी। ऐ जवानों, ऐ मेरे नौजवान साथियों, अपने जहन पे जोर डालो, जवानी उम्र का एक हिस्सा है, मगर अल्लाह के दरबार में क़यामत के रोज जवानी की उम्र सारी उम्र से हटकर अल्लाह सवाल करेगा, ये उम्र तूने कहां गुजारी। अल्लाह अकबर। इसलिए जवानी की जो उम्र होती है, यह ताकतवर उम्र है, जज्बात से मामूर उम्र है, कुछ कर गुजरने वाली उम्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी हम देखते हैं, तारीख को अगर हम पढ़ते हैं, नौजवानों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हर जुमा में आप सूरह कहफ पढ़ते हैं, सूरह कहफ की एक आयत मैं आज आपको पढ़ के सुनाता हूं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुछ नौजवानों को हमारे लिए हीरो बनाया है। अल्लाह ने कहा ये नौजवान हैं, ऐ मुसलमान के नौजवान, तू अगर किसी को हीरो बना सकता है, 15वें पारे में सूरह कहफ में जिसकी तिलावत हर जुमा के दिन मसनून है, इनको तो हीरो बना, तेरी जिंदगी बन जाएगी इंशाअल्लाह। इन्नहुम फितियतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द। क्या सुभान अल्लाह, रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदअ मिन दूनिही इलाहा लक़द क़ुलना इज़न शतता। एक आयत मैंने पढ़ा है, कुछ नौजवानों के बारे में अल्लाह ने कहा, वो कुछ नौजवान थे, फितियतुन, कितने थे अस्हाबे कहफ? अस्हाबे कहफ कितने थे? अस्हाबे कहफ कितने थे? बोलो। 4 थे, 5 थे, 5 या 7, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। 7 थे। कुरान पूरा पढ़ना, कभी भी आधी आयत कभी नहीं पढ़ना। वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था, ऐसा है आयत। ऐ नौजवानों, अगर कुत्ता भी नेक लोगों के साथ रहता है, उसका नाम कुरान में आता है। अगर कुत्ता भी नेक लोगों के साथ है, क़यामत की सुबह तक वो कुत्ते का जुमला हम कुरान में पढ़ते हैं, और वो क़यामत की सुबह तक वो जुमले पे हमें सवाब दिया जाएगा। नेक सोहबत, नेक लोगों के साथ रहना, सही दोस्ती करना,
कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे दीन में, यह कुरान की आयत तुम्हें बताती है। वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। कुत्ते को रब ने जिक्र किया। कुत्ता भी अगर सही लोगों के साथ रहता है उसका भी नाम हो जाता है। आपसे मेरी गुजारिश है, नौजवान बिगड़ने में सबसे बड़ा हाथ दोस्ती का होता है। मां बाप इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। हर जगह, कल मैसूर में, उससे पहले उड़पी में, उससे पहले मंगलूर में, या आज यहां गोरी बिन्नूर में, हर जगह जिम्मेदार मिलकर कहते हैं स्टेज पे चढ़ने से पहले, शेख यहां के नौजवानों में ड्रग्स है, बच्चे ड्रग्स के आदी हो रहे हैं, बच्चे भटक रहे हैं, नौजवान बेदीन हो रहे हैं, हर जगह लोग परेशान हैं। उसकी बुनियादी वजह, एक वजह है, दोस्ती गलत है। 4 दोस्त मिलके पढ़ने जाते हैं नहीं। हमारे एक अहले हदीस बहुत अच्छे आदमी, अल्लाह उनकी तकलीफ को दूर फरमाए, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमाए, बहुत अच्छे आदमी। चित्रा में अहले हदीस जमात को बढ़ाने में बड़ा काम है। जिंदगी उन्होंने लगा दिया इस काम में। एक मस्जिद, दूसरी मस्जिद, आज तीसरी मस्जिद, चौथी मस्जिद, सारी जिंदगी इस पे लगा दिया। अपने बच्चे को मेरे पास लेकर आए, शेख मेरे बच्चे को देखो, सर में सुराख पड़ा हुआ है। कहां? टार्च डालकर मोबाइल की मैं देखता हूं, अंदर का भेजा दिख रहा है। अब इस वक्त की बात कर रहा हूं। क्या है ये? कहा मैं बाहर बहुत रहता था, घर में निगरानी करता था, मैं ही गाड़ी पे स्कूल छोड़ता था, मगर वो स्कूल हमारे मोहल्ले की सबसे आला स्कूल, सबसे बड़ी स्कूल, सबसे बहुत नामवर स्कूल है। वो स्कूल से मेरे बच्चे में ड्रग्स की आदत आ गई। वहां से आई, 6 महीने तवज्जो नहीं दिया। हालत ये हो गई, बच्चा मेरा हाथ से निकल गया, किसी जगह गिरा, सुराख पड़ा है, वो सुराख थमने का नाम नहीं ले रहा है, सुकने का नाम नहीं ले रहा है। इतने बड़े निमहांस के सारे डॉक्यूमेंट रख दिए, सारे डॉक्टरों को दिखा चुका हूं, पता नहीं अब क्या होगा। अल्लाह से दुआ कीजिए। मैं अल्लाह से इस जगह से दुआ करता हूं, उस बंदे ने दीन के खातिर कुर्बानी दी है, अल्लाह उसके बच्चे की हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनके बच्चे को सेहत आजिला कामिला अता फरमाए। क्यों भटकते हैं, बेदीनी क्यों है? उससे पहले एक जुमला में तुम्हारे सामने कहकर बात आगे लेकर जाता हूं इंशाअल्लाह। बेदीनी आने से पहले अच्छे नौजवान भी हैं, आपको मालूम होना चाहिए। एक जुमला पढ़ता हूं, जहां भी गया हूं पढ़ा हूं, आपके सामने भी पढ़ता हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, कहां से कहां तक जितने नबी आए हैं, जितने पैगंबर आए हैं, उन पर ईमान लाने वाले, नबियों की मदद करने वाले, नबियों की इज्जत करने वाले, नबियों के साथ रहने वाले, आदम से लेकर मोहम्मद तक नौजवान रहे हैं। अल्लाहु अकबर। कौन कौन भी? कैसा हजरत तुम्हें मैं नहीं बोलता, अल्लामा इब्ने कसीर का जुमला है। जुमला इस तरीके से है, अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं, हुमुश शबाब वहुम अक़बलु लिल हक़ व अहदा लिस्सबीली मिनश शुयूख़ वलिज़ा कान अक्सरुल मुस्तजीबीन लिल्लाहि ताला व लिरसूलिही शबाबा। हो सके तो नौजवानों ये जुमला कहीं लिख के रखो इंशाअल्लाह। आप हिस्ट्री में बड़ा शौक रखते हैं नहीं, तो मैं आदम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की हिस्ट्री बता रहा हूं। और अरबी का ये जुमला 800 साल पहले लिखा गया है, वो जुमला तुम्हारे सामने पढ़ के सुना रहा हूं। नौजवान कौन है? अक़बलुल हक़, ज्यादा हक को कबूल करने वाले, वाहदा लिस्सबील, सीधे रास्ते पे ज्यादा आने वाले, मिनश्शयूख़, बड़े लोगों के मुकाबले में हमेशा नौजवान रहे हैं। वलिज़ा, इसीलिए, काना अक्सरुल मुस्तजीबीन, ज्यादातर नबियों पर ईमान लाने वाले नौजवान रहे हैं। अल्लाहु अकबर। आपके इल्म में एक बात लेकर आ जाता हूं। अल्लाह के नबी जब नबी बने, पहले दिन अल्लाह के रसूल ने कहा, नबी मालूम हुए, सबसे पहले नबी पर ईमान लाने वाले कौन? कौन भाई? मेरे 17 मिनट हो गए हैं जी। सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन? बोले, इस पूरे आलम में, इस पूरी दुनिया में सबसे पहले नबी पे ईमान लाने वाला कौन? कम से कम इस मजलिस से वो लेके जाओ ना। एक औरत, अल्लाहु अकबर, एक औरत, हजरत खतीजा,
عورتوں، میری بہنوں، علماء کہتے ہیں اگر ابو بکر صدیق کی خدمات ہیں اس دین کے لیے تو حضرت ختیجہ کی خدمات کچھ کم نہیں ہیں۔ بغیر حضرت ختیجہ کی خدمات کے یہ دین نامکمل ہے۔ پہلے ایمان لانے والی عورت، پہلے جان دینے والی عورت، پہلے منبر بنا کر دینے والی عورت، عورتوں کی بڑی خدمات ہیں۔ صحیح بخاری کی شرح ابن حجر نے جو لکھی، ابن حجر کو پڑھانے والی عورت، سبحان اللہ۔ عورتوں کے موضوع پر جائیں گے تو موضوع بھٹک جاؤں گا میں۔ میرا موضوع نوجوان ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بعد میں ایمان لائے، پہلے دن لانے والوں میں۔ جب ایمان لائے ان کی ایج کتنی تھی معلوم؟ جب مسلمان ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کیا عمر تھی ان کی؟ کوئی ایک آپ میں سے بولو؟ جزاک اللہ خیر، قریب ہیں۔ علماء یہی کہتے ہیں 30/7 یا 30/8، 38 بولے تو ہم نہ سمجھ میں نہیں آتا، اتنی اچھی اردو ہماری نہیں ہے میرے بھائی، ہم نہ 30/7 ہی چلتا سو، ہم نہ 30/7 اور 30/8 اس زبان میں بات کرو جو قوم سمجھتی ہے، جو سامنے والا سمجھتا ہے۔ 30/7 سال عمر مسلمان ہوئے، کیا عمر تھی؟ عمر جب مسلمان ہوئے عمر کیا تھی؟ تیر نہیں مارنا اندھیرے میں، منہ تو کھولے کم سے کم، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 20/7 27 سبحان اللہ۔ مصعب بن عمیر، اللہ اکبر، پورا 1 گھنٹے کی تقریر۔ کوئی عالم سے میں گزارش کرتا ہوں مصعب پر کرے۔ مصعب بن عمیر ایسے نوجوان، نبی نے جملہ کہا مصعب بن عمیر کے بارے میں، احد کی جنگ ہو گئی تھی، لاش پڑی ہوئی تھی مصعب بن عمیر کی۔ صحابہ نے کہا سر چھپائیں، پیر کھل جا رہے ہیں، پیر چھپائیں سر کھل رہا ہے۔ اللہ کے نبی کیا کریں؟ کہا سر پہ کپڑا ڈالو، پیر پہ گھاس ڈال دو۔ پھر وہاں کھڑے ہو کر نبی نے سورہ احزاب کی ایک آیت پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ مومنین میں کچھ مرد ایسے بھی ہیں انہوں نے سچ کر دکھایا ہے اس وعدے کو جو انہوں نے اللہ سے کیا ہے۔ اور پھر نبی نے ایک جملہ فرمایا، ما رأیت احسن لمۃ، اس سے خوبصورت نوجوان میں نے مکے میں نہیں دیکھا، اس سے بہتر نوجوان میں نے مکے میں نہیں دیکھا۔ ایک بار ایک کپڑا پہنتے دوبارہ نہیں، خوشبو لگاتے، اس گلی سے گزرتے، شام تک اس کیا تم پرفیوم لگاؤ گے، کون سے تمہارے ڈھکوسلے پرفیوم ہیں، شام تک وہ خوشبو گلی میں رہتی۔ کلمہ پڑھ لیے، ماں باپ نے کہا یہ زندگی چاہیے تو مسلمان نہیں، اگر مسلمان بننا ہے پہنے ہوئے کپڑے بھی واپس کر دو۔ ایک ٹاٹ کا کپڑا ناف سے لے کر گھٹنے تک، ببول کے کاٹے، مسلمانوں میں پہلے امبیسڈر، اللہ کے نبی مدینے کو جانے سے پہلے دائی بنا کر آپ نے مصعب بن عمیر کو بھیجا، سبحان اللہ۔ اچھے نوجوان تھے اور الحمدللہ آج بھی اچھے نوجوان ہیں۔ آدھا گھنٹہ مجھے شیخ نے کہا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کم لے سکتے ہیں، وقت بڑھا نہیں سکتے۔ 9 منٹ میرے حساب سے باقی ہیں، میں انشاءاللہ ختم کر لوں، انشاءاللہ بھائی ختم کر لوں۔ آج بھی ہیں، آج بھی مصعب بن عمیر جیسے نوجوان ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے سامنے ہیں، میرے ساتھ ہیں، ان کو دیکھ کر میں اپنا ایمان بڑھاتا ہوں۔ ادھر ادھر نہیں جاؤں، تمہارے اس مجلس میں ایک نوجوان بیٹھا ہے، اس وقت اس نے میرے ہی ہاتھ میں 1 لاکھ روپے دیے، فلاں مسجد کو دے دو، فلاں مدرسے کو دے دو۔ اس نے اپنی شادی صرف 7,000 روپے میں کیا۔ یہاں بیٹھا ہے ایک نوجوان، جی ہاں، مجھے چھوڑ کے اسے ڈھونڈنا شروع کرو، مجھے چھوڑ کر اس کو ڈھونڈنا شروع کرو۔ مجھے امید ہے وہ اگر چاہے تو بنگلور کے بڑے سے بڑے پیلس میں کر سکتا ہے، اگر ذرا کوشش کر لے۔ مگر اس نے سنت کو زندہ کیا، سنت کو زندہ کیا، سبحان اللہ۔ دوسرا کرنا چاہے تو لوگ کرنے نہیں دیتے ہیں۔ یہ نوجوان مثالوں کے لیے وقت نہیں ہے، بہت سارے نیک نوجوان ہیں، مگر میرے بھائی اوورال اگر ہم کمپیئر کر کے دیکھیں تو ان کی تعداد، اوورال بول رہا ہوں میں، برے نوجوانوں کے مقابلے میں ذرا کم ہے۔ برائی کی طرف نوجوان بہت زیادہ ہیں،
दीन बेजारी की तरफ नौजवान बहुत ज्यादा हैं। आज दीन से बेजार हैं। दीन क्यों भाई? सूद क्यों नहीं खाना? क्यों गाड़ी लोन पे नहीं लेना? क्यों घर हाउस लोन पे हाउस नहीं बनाना? क्यों एजुकेशन लोन पे लेके नहीं करना? क्यों पैंट टखने के नीचे रखना? क्यों दाढ़ी छोड़ना? क्यों फला क्यों फला क्यों फला? हम नहीं करना चाहते हैं। जी हां, लकीर के फकीर क्या जुमला है उनका। एक बार मैं मैसूर जाते जाते एक जगह नाश्ते के लिए खड़े हुए, उस नौजवान के काम से मैं जा रहा था। खाना खाते खाते बाएं हाथ से पानी पिया। मैं बोला भाई दुरुस्त नहीं है इस्लाम में। कहा यही तुम्हारी गलती है, तुम लोग उलमाए कराम लकीर के फकीर हो। सीधे हाथ से पियो, बाएं हाथ से मत पियो, सीधे से खाओ, कपड़ा ऐसा पहनो। यह दीन बेजारी बेशुमार नौजवानों में आ जा चुकी है, आ चुकी है। क्यों करना, क्यों करना? यह है बहुत कम है। और हां, जो नौजवान अमल कर रहा है उसे समझते हैं ये पुराना दिमाग रखता है, दकियानूस है, बहुत पुराना है, आज लेटेस्ट ये आदमी नहीं है। ऐ नौजवानों, ऐ मुसलमानों, तुमसे मेरी गुजारिश है, सिख अगर दीन पर उसके अपने दीन पे अमल करे वो बहुत बड़ा आदमी है। वो प्राइम मिनिस्टर भी बने और सर के ऊपर अमामा बांधकर चेहरे पे दाढ़ी छोड़कर 10 साल अगर वो प्राइम मिनिस्टर रहे, यही ढकोसला मुसलमान कहता है सिख अपने दीन पर बहुत मजबूत हैं, कड़ा पहनते हैं, छुरा रखते हैं, पेठा बांधते हैं। और दूसरों के बारे में यहूदी अपने दीन पर बड़ा मजबूत है, बाकायदा टोपी पहनता है, बाल छोड़ता है, तौरात पढ़ता है, वेलिंग वाल के सामने खड़े होकर बाकायदा डूलते रहता है। सारी दुनिया अगर अपने दीन पे चल रही है, तुम तारीफ करते हो और तुम्हें अपने दीन से बेजारी है। आज यही चल रहा है, आज यही चल रहा है। गैर मुस्लिम अपने दीन पे चले। और अच्छे से याद रखो, एक बार नहीं 10 बार अल्लाह की कसम खाकर कहूंगा ये बात। जी हां, वक्त खत्म होने से पहले पहले हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु एक जुमला कहते थे, तुम सर नीचे पैर ऊपर कर लो, इज्जत नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी इज्जत। कोई एमएलए हमें इज्जत नहीं दे सकता, कोई एमपी हमें इज्जत नहीं दे सकता, कोई दुनिया की ताकत हमें इज्जत नहीं दे सकती। हजरत उमर हर साल हज पे जाते, एक जगह खड़े हो जाते, खड़े होकर, पहाड़ का इलाका था वहां ऊंट चराते थे वो, खड़े होकर अपने आप से बोलते, ऐ उमर तो कौन है जानता है? रोजाना तेरा बाप खत्ताब तुझे ऊंट चराने भेजता था और तू ऊंट चराता था इधर, शाम को जब वापस जाता तो रोज मार खाता, तुझे ऊंट चराना नहीं आता था। किसको? ऊंट चरा। आज तू मुसलमानों का खलीफा है, आज तेरी हुकूमत रोम पर भी है, किसरा पर भी है। आज अल्लाह ने इतनी बड़ी हुकूमत दी है, यह हुकूमत तेरे कमाल से नहीं मिली है, यह हुकूमत तेरे इस्लाम से मिली है। एक जुमला बोलता हूं, मेरे साथ बोल लो, ये करोगे तो ही इज्जत मिलेगी, इसलिए कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहा तो देगा, अल्लाह नहीं चाहा तो इज्जत नहीं मिलेगी। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा रुपया, तुम्हारा पेट्रोल, तुम्हारा डीजल, तुम्हारा एलपीजी, तुम्हारे सारी चीजें बेकार है। नहनु कौम अअज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम फमहमा तलबना अल इज्जत बिदून अल इस्लाम अज़ल्लना अल्लाह। ये पूरे मेरी तकरीर का खुलासा है। जी हां, एक जुमला बोल के बात खत्म करता हूं। इसका तर्जमा बोलूं या आप इंशाल्लाह तर्जमा देख लेंगे? जी, तर्जमा बोलूं या तर्जमा देख लेंगे? नहनु कौमुन अअज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम। बहुत सारे लोगों को बड़ी परेशानी होती है। जी हां, परेशानी क्या होती है? रग दुखते हुए रग पे हाथ नहीं रखना। आपको क्या तो भी एक बोल को निकल जाना, क्या चल रहा है उस पे नहीं बोलना। सुभान अल्लाह। जो बेजारी की बात है ना, दीन बेजारी, एक और चीज है, मैं तर्जमा करूंगा, उससे पहले ये बोलकर तर्जमा करके बात खत्म करके बैठ जाऊंगा इंशाअल्लाह। बहुत ज्यादा ओपन माइंड है नौजवान आज, ओवर ओपन माइंड। हलालो हराम की तमीज नहीं, किससे शादी करना किससे शादी नहीं करना उसकी भी तमीज नहीं। जर्रा पढ़ लिए इन्होंने जनाब आली। जी हां, डिग्री पास कर लिए, मास्टर डिग्री ले लिए, न बाप की सुनती है बच्ची, वो न मां की सुनती है। बाप तड़पता रहता है, मछली की तरह तड़पता रहता है, बेटा नहीं, नाक कट जाएगी मेरी, खानदान में क्या मुंह दिखाऊंगा। तो गैर के साथ अगर चली गई, कितने हमने देखे हैं, तो गैर इतना ओपन माइंड है, इतना ओपन माइंड है आज की बच्ची। सुभान अल्लाह। तो अगर मुआशरे में मैं चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। कहने वाले कहते हैं 6 लाख अब तक वाकयात हो चुके हैं,
कल जाओ ना बेंगलुरु, कल जाओ सुबह को बेंगलुरु में जितने रजिस्ट्रार ऑफिस हैं, किसी एक रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर देखो, स्कार्फ पहनकर, बाकायदा स्कार्फ पहनकर एक बच्ची की फोटो, उसके नीचे किसी भेड़ चमार की फोटो। यह चल रहा है मेरे भाई, यह चल रहा है। क्यों चल रहा है? वजह क्या है? कैसे इसे दूर कर सकते हैं? दूर करने का सबसे बड़ी वजह मां बाप है, वालिदैन हैं। इन्होंने इतनी छूट दे दी, सुभान अल्लाह। और अजीब बात है, आज हमारे कल भी मिसाल दिया, आज भी देता हूं, बच्चों के खिलाफ कुछ नहीं बोलना मां बाप को, बर्दाश्त नहीं करते मां बाप। हमारे उस्ताद, शेख के उस्ताद, शेख के उस्ताद, शेख को कुछ दिन पढ़ाए हैं, बेशुमार उम्रियों के उस्ताद हफीजुर रहमान साहब क्लास में एक मिसाल देते। एक जमाना था, कोई बच्चा अगर किसी गांव के किनारे बीड़ी फूंकता, कोई आकर बोलता तुम्हारा बच्चा उधर बीड़ी फूंक रहा है, सिगरेट फूंक रहा है, तो बाप पहले बोलता, एक थप्पड़ मारते, बाद में आकर मुझे बोलते। एक दौर था। आज अगर कोई आकर बोलता है ना, बाप बर्दाश्त कर लेगा बेचारा, अंदर से मां की आवाज आए, इसका बेटा कौन सा सीधा है? इनके बच्चे कौन से सीधे हैं? बेजालाड़ और अपने बच्चों के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहते, गलत कोई चीज सुनना। इसका यह नतीजा है, इसका यह नतीजा है, आप खुद बैठकर रोते हो एक वक्त आ जाता है। और दूसरी बात, मेरी गुजारिश है, इस पर अमल कीजिए, 1 मिनट बाकी है। मकतब जो आज जिसका इजलास हुआ ना, अल्हम्दुलिल्लाह, इसके निजाम को अच्छा बनाइए, मकतबों को अच्छा बनाइए। एक बच्चा 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा, 7 साल पढ़ा, क्या भाई पढ़ रहा है? 7 साल भी असल कुरान पढ़ रहा है, 7 साल भी वही पढ़ रहा नहीं। मकतब के निजाम को इतना अच्छा बनाओ, सुबह शाम का ये जो मकतब है, इंशाअल्लाह याद रखो मेरी बात को, हमारे बच्चों के ईमान की यह मकतब इंशाअल्लाह हिफाजत करेगा। इंशाअल्लाह, मामूली ना समझो इसे। यह मकतबों का जो निजाम है सुबह शाम का, अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको मैंने सुबह शाम में पढ़ाया है, आज फख्र से कहता हूं और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करके कहता हूं, मेरे स्टूडेंट टेक्सास में भी हैं, अमेरिका के अंदर, सैन फ्रांसिस्को, वो जुमले भी मुझे नहीं आते थे, वो बच्चे फोन करते हैं बार बार, इसलिए वो नाम याद हो गए हैं। सैन फ्रांसिस्को भी हैं, न्यूयॉर्क के अंदर भी हैं, दुनिया के कोने कोने में हैं, और फख्र से अल्लाह की शान है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो दीन पर कायम है। और हमेशा कहते हैं, हजरत जो कुछ भी हमने सीखा, नाम लेकर मस्जिद रहमानी में सुबह और शाम के दरसों में सीखा, मकतब में सीखा, वही दीन हमें काम आ रहा है। हम देख रहे हैं, 20 साल हो गए ना एक ही जगह पर, 20 साल हो गए देख रहे हैं बच्चों को। इसलिए मस्जिद रहमानी में जो मकतब चल रहा है, मेरी आजीजाना गुजारिश है, इस मकतब के निजाम को इतना अच्छा बनाओ, बच्चों को अकीदा, दुआएं, आदाब, कुरान, सूरतें, अज़कार, ये सारी चीजें जरी जरी करके सहाबा सहाबियात के वाकियात ऐसे रचा दो, बिठा दो, पिला दो, ये बच्चे जहां भी जाएं इंशाअल्लाह अपने दीन पर कायम रहें। अल्लाह से मैं वो तर्जमा कर देता हूं, नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम फमहमा तलबनल इज्जत बिदूनिल इस्लाम अज़ल्लनल्लाह। हम वो कौम हैं, अल्लाह ने हमें इस्लाम से इज्जत दी है। जब भी मुसलमानों ने इस्लाम को छोड़कर दूसरी चीजों में इज्जत को तलाश किया, अल्लाह ने जलील कर दिया। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला कहने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। गौर से देख रहे हैं जलील साहब, एक बड़ी अहम चीज मौलवी साहब छोड़कर बैठ जा रहे हैं ना, कैसा आपके पीठ के पीछे एक माशाअल्लाह एक छोटा सा बैनर लगा हुआ है। उस बैनर के अंदर माशाअल्लाह एक ऐसी जगह पर शहर बेंगलोर में एक मस्जिद की तामीर की जा रही है जहां पर कोई मस्जिद नहीं है, जहां पर दूर दूर तक भी आले हदीस मस्जिद नहीं है। सुभान अल्लाह, नौजवान बच्चे रेडी हुए हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। देखो ऐसे भी नौजवान हैं, अल्लाह इनसे मस्जिद का काम ले रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जवानी जो क्रिकेट में खेलने में लोग गुजारते हैं, उल्टे सीधी चीजों में गुजारते हैं, ये बच्चे अल्लाह का घर बनाना चाहते हैं। और इन्होंने एक जगह खरीदी है, 50 लाख रुपए है। सुनकर रकम बड़ी लगती है, 14 लाख अल्लाह के फजल करम से अदा कर दिए गए हैं। 30 पर 6 लाख अल्हम्दुलिल्लाह इनको देना है। ये जगह जगह जा रहे हैं और अल्लाह के खातिर जा रहे हैं, अपने खातिर नहीं, अपने लिए मांगने के लिए नहीं, अल्लाह के खातिर जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है, इस बाबरकत मौके पर अल्लाह के घर की मदद कीजिए, अपना एक हिस्सा उसमें डाल दीजिए इंशाअल्लाह ताला।
اللہ تعالیٰ آپ کی دنیاوی اور اخروی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ کیار پورم کی جگہ ہے یہ، ایک اسکوائر فٹ 8,000 روپے ہے، ایک مسلح 70,500 روپے ہے، آدھا مسلح 35,250 روپے ہے۔ آگے بڑھ چڑھ کر میری بہنوں آپ سے بھی گزارش ہے، آپ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کو دوبارہ جگائیے انشاءاللہ تعالی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں میں اللہ تعالی دین عطا فرمائے، دین بیزاری سے اللہ ہمیں بچائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔